Assalamualaikum everyone. Topic of today's discussion is retinal vein occlusion. It's a fairly common occurrence in our outpatient department, or we should all know how to diagnose and manage retinal vein occlusion. Also, because it is common, तो एग्जाम में भी ज़रूर आता है. टोक्स में आप पिक्चर रख देंगे, टोक्स में नहीं आएगा तो शॉर्ट केस में आ जाएगा, शॉर्ट केस में नहीं आएगा तो लॉन्ग में ज़रूर आएगा. ठीक है, ये आप अच्छे से बताएगा. तो लेट्स बिगिन. Retinal vein occlusion can be a branch retinal vein occlusion, it can be a central retinal vein occlusion, and it can be a hemiretinal, hemispheric or hemicentral vein occlusion. First of all, we will discuss branch retinal vein occlusion. Risk factors में सबसे पहले age is the most important risk factors. और risk factor उसके बाद hypertension, arteriosclerosis, diabetes. About 2/3 of the RVO patients are hypertensive, 1/3 patients have arteriosclerosis, 15% of the patients are diabetic. Smoking, hyperlipidemia, local factors में glaucoma, ocular inflammatory disease और systemic predisposing condition में anti-phospholipid antibody, short axis length. ये सारे predisposing factors हैं. Protective factors में high density lipoprotein and कुछ जगह पे लिखा हुआ है light to moderate alcohol consumption. Presentation, patient presents with a sudden paleness, loss of vision. There will be a visual field effect corresponding to the branch involved. Supratemporal है, supranasal है. Most commonly supratemporal branch involved होती है. Subclinical presentation में अगर if tributaries distal to macula or nasal vein is involved, and sometimes floaters from a vitreous hemorrhage. Pathogenesis. Lumen of the vein may be compressed up to 33% at the grossing sites, as arterioles and venules share a common adventitial sheath normally. This would be increased in arteriosclerosis or atherosclerosis. Vitreous may also play a role in compression of susceptible AV crossing sites. So, cursor नहीं होगा. This is a picture of supratemporal branch retinal vein occlusion. और इसमें जो white circle हुए हैं, these are actually cotton wool spots, and you can appreciate flame shaped and dot hemorrhages. लेकिन point to be noted is कि सिर्फ ये वाला quadrant नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि supratemporal branch में occlusion हो गया. और ये इसका corresponding angiogram है, और इसमें ये जो highlight की है वो AV crossing पे आपने देखा है कि compress हो गई है. Other postulated hypotheses are turbulent blood flow at the crossing site, which leads to focal swelling of endothelium and deeper vein wall tissue, and this results in venous obstruction. Then further pathogenesis, venous obstruction leads to elevation of the venous pressure. This overloads the collateral draining capacity, which results in macular edema and ischemia, and unrelieved venous pressure can result in rupture of vein wall with intraretinal hemorrhages and extravasation of blood contents. Signs on clinical exam. Visual acuity is variable. 50% of the untreated cases achieve 612 vision final, but a quarter only achieve up to 660 or worse. Pupillary reaction depends के कितना ischemic है. The more the ischemia, more will be the chances of RAPT. Usually BRBO में RAPT नहीं होता. और pupils जो है या तो sluggish होते हैं या फिर properly react कर देते हैं. Intraocular pressure is usually elevated. Undilated anterior chamber exam for neovascularization of the iris is mandatory. Neovascular glaucoma is much less common in BRVO as compared to central retinal vein occlusion. लेकिन gonioscopy, undilated gonioscopy is mandatory because अगर neovascles iris पे बनती हैं तो margin पे appear होने से पहले वो एंगल पे आ सकती है. तो अनडायलेटेड गोनियोस्कोपी इज मैंडेटरी कि अगर आपने पैनरेटिनल फोटोकोगुलेशन करनी है तो टाइम कर. डायलेटेड फनस एग्जाम. डायलेटेशन एंड टॉर्चुओसिटी ऑफ द अफेक्टेड वीनस सेगमेंट. फ्लेम शेप्ड एंड डॉट हेमरेजेस जो हमने अभी देखे हैं. कॉटन वूल स्पॉट्स, रेटिनल एडिमा. ऑक्लूजन में बी आइडेंटिफाइड एट एवी क्रॉसिंग्स. Acute features resolve in 6 to 12 months, leaving sheathing or sclerosis, and collaterals may develop cystoid macular edema. Is the most common cause of visual loss. Neovascularization, NVEs, NVDs. They usually develop at the junction of ischemic and non-ischemic retina.
The risk is higher in eyes with more than 5 disc diameter non-perfusion on FFA. This again is a picture of supratemporal branch retinal vein occlusion. इसमें आपने देखा है मैसिव डॉट और फ्लेम शेप हेमरेजेस हैं और मैकुला को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ BRVO, ये मेजर ब्रांच डिस्क के पास ओक्लूड हो सकती है, दिस वन हियर, और मेजर अवे फ्रॉम द डिस्क माइनर मैकुलर, और D, E और F पेरिफेरल है नॉट इन्वॉल्व. अनलिमिटेड BRVO इन्वॉल्विंग द फोबिया, इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं प्री फोबियल हेमरेज है जो FFA पे मास्किंग शो कर रहा है और यहाँ पे लीकेज है. In chronic phase of the disease, after intraretinal hemorrhage absorption, the diagnosis may depend on detecting segmental distribution of retinal vascular abnormalities that include capillary non-perfusion, dilatation of capillaries, telangiectatic vessels and collateral vessel formation, and sclerotic vessels. This here is a sclerosed vessel. Systemic investigations. Blood pressure is not an investigation, आपने examine करना है. CBC with ESR, blood sugar random, lipid profile, renal function test and thyroid function test. कुछ टेस्ट हैं जो आपने selected patients में करने हैं. Patient 50 years से young है, उसको BRVO पहले कभी हुआ and then the BRVO has recurred, और bilateral BRVO है. ऐसे patients में आपने CXR, X-ray chest, C-reactive protein और thrombophilia profile, auto antibodies और serum ACE levels करते हैं. X-ray करना है tuberculosis और sarcoidosis और left ventricular hypertrophy को rule out करने के लिए. C-reactive protein is an important inflammatory marker. Thrombophilia profile जैसे factor V gradient है, antiphospholipid antibodies हैं, ये सब आपने करवाना है, खास तौर पे उन पेशेंट्स में जो यंग हैं और जिनमें ये सारे टेस्ट नॉर्मल हैं. Ocular investigations include OCT for detection of macular edema and fundus angiogram for detection of macular ischemia. During acute phase, intraretinal hemorrhages block view of macular ischemia and leakages, so FA is delayed till resolution of intraretinal hemorrhages. This is the fundus angiogram. Fundus angiogram initially shows late filling, delay in the AV transit time, and here can you appreciate these black areas? These are actually capillary non-perfusion areas and they indicate ischemia and leakage as well. This picture shows flame and blot hemorrhages with cotton wool spots and venous tortuosity. Cotton wool spots are sign of ischemia. यहाँ पर corresponding fundus angiogram में देखें कितने ज़्यादा capillary non-perfusion areas. Cystoid macular edema is present on the OCT as black hyporeflective intraretinal spaces. Macular edema जब हम देखते हैं तो we can differentiate कि इसका prognosis good है या poor है on the basis of fundus angiogram. If the fundus angiogram shows non-capillary perfusion areas, then the cause of macular edema is ischemia and it has a poor prognosis. But if the FA shows good capillary perfusion, the leakage is the major cause of edema and it has a good visual prognosis. Complications, macular edema and ischemia, sequelae of neovascularization. Sorry, spelling mistake है. Bravo study जो है उसमें बताया था कि 31 to 41% of the patients with ischemic BRVO develop neovascularization compared to 11% of the patients with non-ischemic BRVO. And among those, 60% develop periodic vitreous hemorrhage. Retinal neovascularization typically develops at 6 to 12 months but may occur later. NVIs or angle neovascularization develops in only 1% of the eyes with BRVO. उस 1% को भी rule out करने के लिए it is mandatory कि आप undilated gonionoscopy जरूर करें. These are NVEs and these are neovascularization at the disc. Treatment: if visual acuity is 6-9 और वर्स, ये 6-9 एंड इम्प्रूविंग ये लिखा हुआ है कैल्सकी में, ठीक है, लेकिन और कुछ जगह पे लिखा हुआ है 6-12 और इम्प्रूविंग, तो उसमें आप ऑब्जर्व करें. मैकुलर एडिमा विद विजुअल एक्यूटी 6-12 और वर्स, उस केस में आप इंट्राविट्रियल एंटी VEGF दे सकते हैं, इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनोलोन एसीटोनाइड दे सकते हैं, मैकुलर ग्रिड लेजर.
NPTs और NPEs के लिए सेक्टोरल PR भी कर सकते हैं और NBIs के लिए अर्जेंट सेक्टोरल PR। टेबल है, कुछ स्टडीज़ हैं BRBO की, बहुत ज़्यादा क्रैम्ड अप है, लेकिन ये नहीं अवेलेबल था। ये सारी स्टडीज़ जो है ये कैंसकी में भी लिखी हुई हैं और जहाँ कहीं भी आप गूगल से वेब से आप ले लें, ये स्टडीज़ लिखी हुई हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं बारी बारी सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो वी कैन प्रोसीड। नहीं करें, डिस्क्राइब करें, हम इसलिए तो बैठे हैं। ब्रांच वेन ऑक्लूजन स्टडी BVOS स्टडी 1984 से 1986 में कैरी आउट हुई थी एंड दिस स्टडीज द इफेक्ट ऑफ मैकुलर आर्गन लेजर फोटोकोगुलेशन। और इसकी कंक्लूजन ये थी कि लेजर फोटोकोगुलेशन वाज यूजफुल फॉर पेशेंट्स विद मैकुलर एडिमा एसोसिएटेड विद ब्रांच वेन ऑक्लूजन रिड्यूसिंग विजन टू 20/40 और वर्स। अगली स्टडी है बेवासिजुमाब फॉर रेटिनल वेन ऑक्लूजन और इसमें ये कि 3 इनिशियल इंट्राविट्रुअल बेवासिजुमाब इंजेक्शन दिए गए थे एट मंथली इंटरवल्स एंड रीट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल रेटिनल थिकनेस। और इसकी कंक्लूजन ये थी कि इंट्राविट्रुअल बेवासिजुमाब इज सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन पेशेंट्स विद मैकुलर एडिमा सेकेंडरी टू रेटिनल वेन ऑक्लूजन। जो स्कोर BRBO स्टडी है 2009 में कैरी आउट हुई थी and this compares the effect of 1 milligram and 4 milligram preservative-free intravitreal triamcinolone acetyl with great photocoagulation, और उसके रिजल्ट में there was no difference between the two at 12 months for standard care group compared with intravitreal triamcinolone acetyl। लेकिन जो 4 milligram वाला ग्रुप था उसमें जो साइड इफेक्ट्स थे वो ज़्यादा थे, जैसे कि एलिवेटेड IOP और कैटरेक्ट। फिर BRAVO स्टडी है 2010 में कैरी आउट हुई थी। ये इंट्राविट्रियल रेनिविजुमाब 0.3 और 0.5 मिलीग्राम को कंपेयर करता है विद शैम इंजेक्शंस और इसका भी रिजल्ट ये था कि इट्स एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मैकुलर एडिमा फॉलोइंग BRBO विद लो रेट्स ऑफ ऑकुलर एंड मोनोकुलर सेफ्टी इवेंट्स, नॉन ऑकुलर सेफ्टी इवेंट्स। जेनेवा स्टडी 2010 में कैरी आउट हुई थी और ये जो इंट्राविट्रियल डेक्सामेथासोन इम्प्लांट है ऑजोडेक्स 0.7 और 0.35 मिलीग्राम का इफेक्ट जो है विद कंपैरिजन टू शैम स्टडी किया है और इसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि हैड बेटर इम्प्रूवमेंट in best corrected visual acuity there was no significant difference in effect of IOP and there was no significant difference in effect of occurrence of cataract। और जो वाइब्रेंट स्टडी है 2015 में कैरी आउट हुई थी इंट्राविट्रियल एफलीबर्सिब 2 मिलीग्राम एवरी 4 वीक्स। वैसे हम देते हैं एफलीबर्सिब आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, तो इस स्टडी में एवरी 4 वीक्स जो है इसका इफेक्ट जो है वो स्टडी किया गया था कंपेयर्ड विद ग्रिड लेजर। और मंथली इंट्राविट्रियल एफलीबर्सिब प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर विजुअल बेनिफिट एंड रिडक्शन इन सेंट्रल रेटिनल थिकनेस एट 24 वीक्स देन ग्रिड लेजर फोटोकोगुलेशन इन आईज विद मैकुलर एडिमा आफ्टर। तो ये नीचे सारी एब्रीविएशंस हैं, तो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो प्रोसीड फर्दर। ये सारी BRBO की स्टडीज हैं। फिर हेमीरेटिनल वेन ऑक्लूजन, इट इज अ वेरिएंट ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन लेस कॉमन देन BRBO and CRBO। Hemispheric occlusion blocks the major branch of central retinal vein at near the disc mark, at or near the disc mark। Prognosis depends upon the severity of retinal ischemia और वो आपको FFA पे ही पता लगेगा कि कितना ischemia है। Patient presents with sudden onset altitudinal visual field defect and इसलिए जो वेन ऑक्लूजन वाले पेशेंट्स हैं क्लिनिकली आप कंसल्टेशन से उनकी विजुअल फील्ड जो है वो OPD में चेक कर सकते हैं एंड कैन भी होती है। फंडस शोज फीचर्स ऑफ ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन इन्वॉल्विंग सुपीरियर और इंफीरियर हेमी। ये जी हेमीरेटिनल वेन ऑक्लूजन है, इसमें देखने की बात ये है कि इसमें नेजल और टेम्पोरल दोनों एरियाज इन्वॉल्व हैं। इंफीरियर हाफ ऑफ द रेटिना इज इन्वॉल्व और सुपीरियर जो है वो बिल्कुल स्पेयर्ड। और ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग फंडस है शोइंग हाइपोफ्लोरेसेंस ड्यू टू कैपिलरी नॉन परफ्यूजन माइल्ड पेरीवास्कुलर हाइपरफ्लोरेसेंस। और ये जो हाइपोफ्लोरेसेंस है यहाँ पे क्यों आ रही है, इधर कैपिलरी नॉन परफ्यूजन की वजह से भी और क्या वजह है, मास्किंग की वजह से। हेमरेज जो है वो मास्किंग कर रहा है। नाउ वी कम टू सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन एसोसिएशन एंड रिस्क फैक्टर्स। इसके तकरीबन वही हैं जो ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन के, डायबिटीज, हाइपरटेंशन,
कैरोटिड इनसफिशिएंसी। ऑकुलर डिजीजेज में प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, सूडोट्यूमर सेरेब्राई, टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क, ऑप्टिक नर्व, हेड ब्रूजिंग, ये सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। हेमेटोलॉजिकल ऑल्टरेशंस जिसमें हाइपरविस्कोसिटी सिंड्रोम्स हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, सिकल सेल डिजीज, एनीमिया, एलिवेटेड प्लाज्मा होमोसिस्टीन, फैक्टर 12 डेफिशिएंसी, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, प्रोटीन सी एंड एस डेफिशिएंसी। इन्फ्लेमेटरी और ऑटोइम्यून वास्कुलाइटिस मेडिकेशंस हैं जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और डायरेटिक्स हैं और इन्फेक्शियस वास्कुलाइटिस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अदर्स में लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद का हम पेशेंट का फंडस देखते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी से पहले बिल्कुल ठीक होता है, पेशेंट सर्जरी करा के आता है, हम 1 वीक पे विजन कराते हैं, विजन इंप्रूव ही नहीं होती, फिर हम उसका फंडस देखते हैं तो CRPO होता है। तो एक कॉज उसकी रिट्रोबल्बल ब्लॉक भी है, डिहाइड्रेशन और प्रेगनेंसी। पैथोजेनेसिस इसकी within the retrolaminar portion of the optic nerve, central retinal artery and vein are aligned parallel to each other in common tissue sheath। ये मैं आपको ना आगे डायग्राम से समझाती हूँ कि ये लेमिना ट्यूबरोसा है, एंड दिस इज ऑप्टिक नर्व जिसमें रेटिनल वेन और आर्टरी जो है वो कॉमन एडवेंटिशियल शीथ में पास कर रहे हैं। तो जब वो लेमिना ट्यूबरोसा से पास करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे थोड़ी सी कंप्रेशन आ रही होती है। बट इफ द आई हैज़ कंडीशन जैसे कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा है, प्रेशर उसका राइज कर रहा है, तो ये जो इसकी पोस्टीरियर बोइंग है लेमिना ट्यूबरोसा की, दिस विल प्रीडिस्पोज दीज वेसल्स टू कंप्रेशन। ये इसकी कॉमनेस्ट कॉज है। और हाइपरटेंशन, ऑकुलर हाइपरटेंशन में भी यही वजह होती है कि यहाँ पे सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन जो है इस पॉइंट पे मोस्ट कॉमन है। Serioretinal artery occlusion can occur in association with CRPO. Together, these occlusions have been hypothesized to constitute a distinct clinical entity arising from a sudden increase in intraluminal capillary pressure due to CRPO inducing relative occlusion of the serioretinal artery, whose perfusion pressure is lower than the central retinal artery. Clinical features: sudden painless loss of vision है, hemorrhages radiate from the optic nerve head, are variable in quantity and may result in classic blood and thunder appearance. Angry looking fundus होता है। Visual acuity, it ranges from 636 to 660 in a non-ischemic CRPO, and if it is ischemic तो count finger or worse. Projection usually ठीक होती है। Intraocular pressure is either elevated due to a primary open angle glaucoma if the patient has the condition, or due to neovascular glaucoma. Undilated iris exam for neovascularization, ये हम पहले भी इस पे स्ट्रेस कर चुके हैं। ऑर्गोनियोस्कोपी, 100-day ग्लोकोमा जो है ना, ये पूछते हैं कि व्हाट इज 100-day ग्लोकोमा। तो यूजुअली 2 to 4 months पे रूबियोसिस जो है वो शुरू होता है, तो तभी पेशेंट जो है वो आपको एलिवेटेड कंजेस्टेड आई के साथ, एलिवेटेड आईओपी के साथ, पेनफुल आई के साथ प्रेजेंट करता है। डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन में वही वाले सारे साइंस हैं, लेकिन दीज विल इन्वॉल्व ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। और इसमें डिस्क कोलैटरल्स जो है ना, कोलैटरल वेसल्स, लूपिंग वेसल्स एज कंपेयर टू BRBO हमें ज़्यादा कॉमनली मिलती हैं। सो प्रेजेंस ऑफ डिस्क कोलैटरल्स या कोलैटरल वेसल्स which usually cross the horizontal raphe, they are actually communicating the non-ischemic to the ischemic retina, and their presence is a good prognostic sign. ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की फंडस पिक्चर है। वही वाली सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, कुछ आपने सब पेशेंट्स में करानी है, सम विल बी डन इन सिलेक्टेड पेशेंट्स। ऑकुलर इन्वेस्टिगेशंस में OCT और फंडस एंजियोग्राम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वही वाली फाइंडिंग्स जो पहले किसी एक क्वाड्रेंट में थी अब पूरे 4 क्वाड्रेंट्स में है। परफ्यूजन स्टेटस, परफ्यूज CRPO, नॉन इस्केमिक या इनकम्प्लीट पार्शियल CRPO भी कहते हैं, demonstrate less than 10 disc areas of retinal capillary non-perfusion on FA, and these eyes typically have less intraretinal hemorrhage and better initial visual acuity. जो नॉन परफ्यूज या इस्केमिक CRPO है, इसे हेमरेजिक और कंप्लीट CRPO भी कहते हैं, demonstrates 10 or more disc areas of retinal capillary non-perfusion on FA, in greater degree of intraretinal hemorrhage, macular and disc edema, and worse vision at the onset. दिस इज अ रीसेंट नॉन इस्केमिक CRPO। इसमें आप एक चीज़ आपको कौन पॉइंट आउट करेगा, किसकी बेसिस पे?
ये क्लिनिकल पिक्चर देख के हम कह रहे हैं कि ये नॉन इस्कीमिक है। कॉटन स्पॉट्स बहुत कम है, कहीं कहीं आपको देखने गौर करने को मिल रहे हैं। और जो एंजियोग्राम है उसमें नॉन परफ्यूजन एरियाज भी 10 डिस्क एरियाज से कम है। और ये जो है ये इस्कीमिक में आप देखेंगे फंडस एंजियोग्राम में कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरियाज बहुत ज़्यादा है, मोर देन 10 डिस्क एरियाज है। Complications include atrophic retinal and RP changes, subretinal fibrosis, epiretinal membranes, and NVDs, NVEs, NVIs, and neovascular glaucoma. This picture shows angle neovascularization. Initially, open angle होता है, but the angle neovascularization can then form peripheral anterior synex and it can be converted to a close angle glaucoma. और ये margin पे गौर करने पे zoom करने पे नजर आती है। You don't have it in mind, you won't care to look into it carefully. Margin पे neovascularized eyes. These are optociliary shunts. जो कोलैटरल या ऑप्टोसिलरी शंट वेसल्स हैं उनको न्यूवास्कुलराइजेशन से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, फंडस एंजियोग्राम पे लीकिंग नहीं होती है। जो एनवीईज है न्यूवास्कुलराइजेशन है उसमें हमेशा लीकेज होगी और इनकी प्रेजेंस जो है इट इज अ गुड प्रोग्नोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ मैकुलर एडिमा, treatment is usually indicated for visual acuity 6-9 or with significant macular thickening more than 250 micrometers of toxicity. Intravitreal anti-VEGF agents may initially be given monthly for 6 months and subsequently less intensively. Intravitreal dexamethasone implant should sustain visual and anatomical improvement following 2 months after a single implantation, but have slightly higher rate of IOP elevation, etc. ये जेनेवा स्टडी में पहले भी कोट हुआ है। Intravitreal triamcinolone acetonide showed an improvement of 3 or more lines of vision at 1 year in over 25% of the patients versus 7% of the control. ये स्कोर स्टडी। न्यूवास्कुलराइजेशन जब भी होती है उसका एक ही ट्रीटमेंट है। अगर आपको विजन क्लियर है, आप देख सकते हैं फंडस, तो आपने क्या करना है, PRP करनी, पैन रेटिनल फोटोकॉम्बिनेशन। और अगर एंगल में इन्वॉल्व है तो एग्रेसिव पैन रेटिनल फोटोकॉम्बिनेशन और अर्जेंट करनी है। इंट्राविट्रियल एंटी-VEGF इंजेक्शंस, ये इसका सोल ट्रीटमेंट नहीं है, इट शुड बी कंबाइंड विद पैन रेटिनल फोटोकॉम्बिनेशन। न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा की मैनेजमेंट वो क्या होती है, एट्रोपिन देनी है, माइल्ड सा स्टीरॉयड देना है, टॉपिकल एंटी ग्लोकोमा देना है। उसमें आप प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स हम अवॉइड करते हैं और ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स भी आप दे सकते हैं। विट्रियस हेमरेज मे रिस्पॉन्ड टू एंटी-VEGF, अदर ऑप्शन बीइंग विट्रेक्टमी एंड एंडोडोसिस। फॉलोअप इस्कीमिक सीआरवीओ के पेशेंट को हम 6 मंथ्स तक मंथली इंटरवल्स पे देखते हैं और नॉन इस्कीमिक सीआरवीओ जो है इनिशियल फॉलोअप शुड टेक प्लेस आफ्टर 3 months एंड पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू कॉन्टैक्ट विद विजन डिटीरियोरेट्स। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन स्टडी थी, उसमें ग्रिड लेजर और नो ग्रिड को कंपेयर किया था और रेटिनल न्यूवास्कुलराइजेशन और विट्रियस हेमरेज के अर्ली पीआरपी और नो पीआरपी को कंपेयर किया था। तो ग्रिड लेजर का मैकुलर एडिमा वाली आइज में इन सीआरवीओ कोई ख़ास बेनिफिट नहीं देखा गया और अर्ली पीआरपी और नो पीआरपी में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, इसका कोई रोल प्रोफाइलेक्टिक रोल नहीं है। स्कोर सीआरवीओ स्टडी जो है उसमें 1 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम प्रेजर्वेटिव फ्री इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनोलोन एसिटाइड ये अभी हमने डिस्कस किया है, इट वाज सुपीरियर टू ऑब्जर्वेशन अलोन इन ट्रीटिंग मैकुलर एडिमा। और जेनेवा स्टडी में वही है, डेक्सामेथासोन इम्प्लांट had better improvement in best corrected visual acuity, no significant difference in effect of IOP। जेनेवा स्टडी में उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन स्कोर वाले कहते हैं कि कैटरेक्ट और आने की जो एलिवेट होता है, ख़ास तौर पे 4 मिलीग्राम यूज़ करेंगे। क्रू स्टडी है इंट्राविट्रियल रेनिविजुवाब 0.3 मिलीग्राम एंड 0.5 मिलीग्राम का इफेक्ट कंपेयर टू शैम इंजेक्शंस। Ranibizumab provided rapid improvement 6 months visual acuity and macular edema following CRVO with low rates of ocular and non-ocular safety events. Thank you. इसको कंप्लीट होल्ड होना चाहिए आपका स्टडी
स्टडीज जो है वो भी पूछेंगे इसमें। तो मैकुलर एडीमा में वेन ऑफ लीजन में कोई ग्रिड लेजर का रोल है? तो मैकुलर एडीमा में ज़्यादा तो वैसे एंटी वेजेफ का रोल कंसिडर किया जाता है, और रिफ्रैक्टरी एडीमा में वो लेज़र भी लगाते हैं। तो उसमें कोई प्रिकॉशन जिस तरह ये आपने बताया कि थ्रू दिस डायमीटर दिस ग्रिड छोड़ दें, तो मैकुलर एडीमा में अगर आप ग्रिड लेजर लगाना चाहें तो वो पैपुलर मैकुलर बंडल पे नहीं लगाते? बिल्कुल, वो तो ज़्यादा ही ज़्यादा सी शेप और बाकी सी शेप के हाँ, ग्रिड होती ही वो सी शेप है। तो अभी मेरा रोल इतना रह नहीं गया जब से एंटी हाँ जी, ग्रिड तो वैसे ही बहुत ही कम है। पहली ऑप्शन एंटी वेजर, दूसरी फिर हम ट्रांसलोन पे जा सकते हैं। 20 to 100 शॉट्स रेकमेंडेड है ग्रिड लेजर के लिए, और उसका स्पॉट साइज जो है वो 50 to 100 माइक्रॉन्स को एक्सीड नहीं करना। और ये जो पीआरपी करते हैं इसकी क्या सेटिंग है? ये ट्रेनिंग टाइम ये पीआरपी करते हैं तो लेजर स्पॉट साइज क्या है, पावर क्या है? 150 to 200 स्पॉट साइज हम सेट करते हैं, ठीक है। और उसकी पावर जो है वो 0.5 वर्सेस 200 400 है। इफेक्टिव स्पॉट साइज 400 का आता है, और स्पॉट साइज जो है वो 1 मतलब है स्पॉट साइज 400 500 हम पहले पढ़ते हैं और इतना इंटेंस हो कि वो आपको वाइट ग्रीन नजर आए। अब वो कितने मिली वॉट पे नजर आएगी आमतौर पे? जो हाँ 150 से 200 पे नजर आती है, लेकिन हम हर पेशेंट के बेसिस पे अंदाजन कौन सी रेंज में 200 400 मिली वॉट यस सर। ऐसे हाँ, क्योंकि मैकुलर ग्रिड करते हैं तो 50 to 100 मिली वॉट पे रखते हैं, और पेरिफेरी में करेंगे तो 200 से शुरू करें और बढ़ाते जाएं जहां आपको वो वाइट स्पॉट नजर आना शुरू हो जाए। क्यों ऐसे ही है? जी सर, रिएक्शन पे डिपेंड करता है। आपके जो लेज़र की जो ग्रेडिंग की जाती है ना, रिएक्शन उसमें भी वो ग्रेड होते हैं, ब्लैंचिंग है उसमें, ग्रे वाइट, इस तरह वो 4 वो पैटर्न होते हैं। तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है। पावर मुख्तलिफ लेज़र्स की पावर जो पुरानी पड़ी है उसकी पावर आपको बाद में 600 भी रखनी पड़ती है, जो बिल्कुल नहीं है वो समटाइम वो 150 पे बहुत उससे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देनी होती है। तो आपने एक या दो स्पॉट लो पावर पर रख के लगा के आपने उसको रिएक्शन को असेस करना है, रिएक्शन किस कलर का आ रहा है, उसी हिसाब से आपने पावर की सेटिंग करनी है। सर इसमें जो 4 रिएक्शंस आपने बताया बिल्कुल वैसे ही ग्रे वाइट वाइट और चॉकी वाइट। ग्रे हम रखते हैं जब हमने फोकल लेजर करनी है या ग्रिड करनी है, फिर जब हम पीआरपी पे आ जाते हैं तो ग्रे वाइट हो जाती है, और बराज करते हैं तो वाइट आ जाता है, और फिर अगर हमने वो ट्यूमर चॉक करना तो चॉकी वाइट। और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर स्पॉट साइज को कम कर देते हैं, अगर 200 स्पॉट साइज है उसको 100 माइक्रोमीटर पे कर देते हैं, तो उसी पार्ट ऑफ रेटिना पे जो एनर्जी आप इम्पार्ट कर रहे हैं वो डबल हो जाती है। स्पॉट साइज एक क्वेश्चन आता है। तो अगर मैकुलर एडीमा है और साथ इस्कीमिया भी है, अब वो कैपिलरी ड्रॉप आउट एरिया से पता चलेगा। जी सो ऐसी कंडीशन में फिर हम लेजर नहीं लगाएंगे? सर ये भी इसमें वो डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ लोग उसमें लगाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं लगानी चाहिए। सर बुक तो कहती है कि जब तक आपको न्यू वेसल्स ना मिले आप मत लगाएं, दिस इज व्हाट द बुक सेज। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि बिकॉज फॉलो अप इज पुअर पेशेंट का, तो हमें व्हेन देयर इज अ डाउट ऑफ इस्कीमिया तो वी प्रोसीड विद लेजर। नहीं सर, बात करें मैकुलर इस्कीमिया की। मैकुलर इस्कीमिया सर बात करें मैकुलर इस्कीमिया की, जब मैकुलर इस्कीमिया तो फिर तो प्रूव फिर हो गया ना, फिर तो फिर आप अच्छा, वेन ओक्लूजन में एक तो जो सारा ब्लड पड़ा हुआ पुरानी जो एडिशन थे उसमें उसको कहते हैं बैटलफील्ड अपीयरेंस। तो अगर कोई ये टर्म यूज करे तो वो भी ध्यान में रखें। तो 2002 में मैं इंग्लैंड गया तो मैं आज स्पेशलिस्ट के घर में था, उसने कहा जी मैं हमने वो वहाँ पे बर्मिंघम में काम करता था, मिडलैंड आई हॉस्पिटल,
तो अच्छा मतलब वैसे लंदन जो लंदन का हॉस्पिटल है मूर फील्ड वो सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर ये बर्मिंघम का जो है मिडलैंड है आई हॉस्पिटल। कहता हमने 3 केसेस डिस्क्राइब किए एंटी फॉस्फोलाइपेड सिंड्रोम में। रिपीटेड अबॉर्शन होती है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन होती है। अच्छा वो हमने तो कैंस की पढ़ी हुई थी, उससे बाहर आता ही नहीं है कुछ, तो लिटरेचर में था ही नहीं जिक्र। तो वो पहले 3 केसेस थे जो उन्होंने डिस्क्राइब किए। तो बेचारा हमारा 2-3 साल मेरे जूनियर था दुरानी, वो फौत भी हो गया कैंसर से। सो किस मतलब किस पेशेंट में आप सस्पेक्ट करते हैं कि ये थ्रोम्बोफिलिक प्रॉब्लम होगी या कोई, तो आप इन्वेस्टिगेट करते हैं? हर पेशेंट में करते हैं या किसी यंगर एज बायलैटरल हो रहा है, बायलैटरल 50 ईयर से कम वाला जो पेशेंट है उसमें ज़्यादा हम ठीक करते हैं भाई क्यों हो गया। 50 ईयर से ऊपर है या डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो फिर वो नॉन, तो इस तरह के पेशेंट को फिर आप फिर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेज देते हैं भाई इसको हाइपरकोएगुलेबिलिटी या हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम वगैरह के लिए आप इन्वेस्टिगेट करें। इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग से ज़्यादा वेन ऑक्लूजन है तो वो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बंद करनी चाहिए। होमोसिस्टीन लेवल ज़्यादा होने से भी वेन ऑक्लूजन की तो एक शावर में ऐसे क्लिनिकल मीटिंग थी तो उसने कहा अभी पेशेंट आया और हमने होमोसिस्टीन लेवल चेक किया, वो बहुत ज़्यादा था तो वो कंट्रोल किया हमने। तो अब सवाल ये है कि किस पेशेंट में आप होमोसिस्टीन लेवल करवाएंगे? हर पेशेंट में कराएंगे वेन पेशेंट ये थोड़े से मतलब है कि हम आमतौर पे वेन ऑक्लूजन के पेशेंट में टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा फिर नहीं जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ ध्यान में रखें कि मेडिकल स्पेशलिस्ट से बंदा कंसल्ट कर लेता है कि भाई क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। एनजीओ सीटी का वो ओसीटी एनजीओ का क्या रोल है? न्यू वेसल्स नजर आ सकती हैं, नजर आएंगी। और एडिमा तो मैं ओसीटी पे भी नजर आ जाता हूँ। ठीक है, तो कोई इम्प्लांट जस्टिफाइड है? ओजोडेक्स में क्या है? डेक्सामेथासोन। और कौन सा इम्प्लांट है? हाँ फ्लूसिडोल, तो वो दूसरा वो भी इम्प्लांट हो सकता है। और आम तौर पे 6 महीने साल में बेहतर हो जाता है। तो कितनी इम्प्रूवमेंट आपने देखी है वेन ऑक्लूजन में? जो रेगुलर फॉलोअप रहते हैं उनके थोड़े अच्छे रिजल्ट, ठीक जो पेशेंट स्किप हो जाता है बाद में उसका तो मतलब है पहले हम ये भी सोच रहे कि यार ठीक हो जाएगा बेहतरीन, तो लेकिन अब जो पेशेंट आए वीएन डिक्रीज हो और मैकुलर एडीमा हो तो एंटीवायरस लगा देना चाहिए। तो वही आपने उसकी देखना है, उसकी टेक्निक और इस्कीमिया को देखना है। वीएन की 3 ही पैरामीटर हैं। तो अगर मतलब है मैकुलर एडीमा है, रेटिनल थिकनेस इंक्रीज्ड है और वीएन कम है और इस्कीमिया नहीं है तो फिर लगा जी। और वही इस्कीमिया में भी एंटीवायरस लगा देते हैं लेजर की वजह से। ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल वही रखने हैं जो 1-1 महीने के बाद लगाएंगे या क्या? जो लेटेस्ट अप्रोच है वो तो ये है कि आप उसको मॉनिटरिंग के साथ है कि 3 इंजेक्शन लगा के उसके बाद आपको उसको इवैल्यूएट ही करना है, टेक्निक उसकी देखनी है, फिर उसकी अपने वीएन को मॉनिटर करना है। जब भी दोनों में से कोई चीज़ डिटेरियोरेट होगी तो आपने फिर उसको लगाना है। इस अप्रोच को क्या कहते हैं?
प्रोरीनेटर PRN। इसके अलावा जो दो पुरानी अप्रोचेस थी, वो पहली एक थी कि आप हर महीने लगाते रहे, दूसरी ये थी ट्रीट एंड एक्सटेंड कि आप लगाएं और इंटरवल बढ़ाते रहें, तीसरी ये अप्रोच है कि जब ज़रूरत है तो लगाएं, देखते रहें कि ताकि मिनिमम लगाने पड़े और रियल एक्टिविटी भी देते रहें। सर वो नीचे ओपीडी में डॉक्टर्स चलो, ओके, थैंक यू।